Hello everyone, how are you doing? Welcome back to my channel Judiciary Possible, and in today's video we are going to complete our part 1 of Arbitration and Conciliation Act. अभी तक हमने सेक्शन 33 तक कंप्लीट कर लिया है. आज सेक्शन 34 से पार्ट 1 में जितना है वो हम कंप्लीट कर लेंगे बिकॉज इट्स नथिंग. 33 तक ही मेन पॉइंट है. 33 के बाद से इट्स जस्ट ऊपर ऊपर का. एंड ऑल्सो I have been posting from past 2-3 days daily mains questions which you have to practice at your home. Do practice it, write your answer and give me your answers through the Telegram channel, the description of which is in the description box. Also, before moving forward with the video, please do like the video, subscribe it and share it with your friends if you are liking the content of the video, because 85% of you have still not subscribed. It will be of a great help if you subscribe to the channel. Okay, so let's begin. We have completed till section 33. Last section was the correction part. Now we come to section number 34, which is given in chapter number 7, which state recourse against arbitral award. Basically, section 34 talks about how to set aside the award, or when can you ask the tribunal to set aside the arbitral award which has been given. Or sorry, not the tribunal, you ask the court to set aside the award which has been awarded to you by the आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो एक पूरी लिस्ट दी गई है सेक्शन में, वो लिस्ट आपको बार बार पढ़नी है. आई एम गोइंग टू रीड सर्टेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. बेयर एक्ट में सब कुछ दिया हुआ है. बेयर एक्ट ही आपको बार बार पढ़ना है. इट इज योर गीता. आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हो. आप बार बार बेयर एक्ट पढ़ो. इसके लिए अलग से नोट्स भी नहीं बनानी है क्योंकि जो दिया है वही है. नथिंग न्यू इज देयर टू इट. सो जस्ट रीड इट मल्टीपल टाइम्स एंड ट्राई टू लर्न इट, बिकॉज प्रीलिम्स में बेसिकली एमसीक्यू टाइप्स में क्या होगा, वो 3 कोई ऐसे होंगे जो उसमें दिए होंगे और 4th पॉइंट वो अपने से बनाएंगे पर वो काफ़ी सिमिलर होगा एंड विल गेट कंफ्यूज एंड मे बी विल मार्क द रॉन्ग आंसर विच वी डोंट वांट. So I will read certain point for which you can refer to your Baer Act. Okay, the first point when you can go to court to set aside the award is when the party is under certain incapacity. Okay, when the arbitration agreement is invalid, if the party is making application without giving proper notice to the arbitrator, if the arbitrator award deals with dispute not falling under the terms of submission to the arbitration, the composition of arbitral tribunal or arbitral procedure was not according to the agreement, if it was in conflict with the public policy of India. अब उस कॉन्फ्लिक्ट में क्या क्या होते हैं, जैसे कोई फ्रॉड हो गया या इंडिया की कोई फंडामेंटल पॉलिसी को वायलेट कर रहा है या उसको कॉन्ट्रवीन कर रहा है, या इट इज़ इन कॉन्फ्लिक्ट विद द बेसिक नोशन ऑफ मोरालिटी या जस्टिस, एज इन कुछ इलीगल ड्रग्स से रिलेटेड कुछ है या इस तरह का कुछ ऐसा हो रहा है, देन यू कैन आस्क द कोर्ट फॉर सेटिंग असाइड द अवार्ड. ओके, जो सेट असाइड अवार्ड हो सकता है वो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल विद इन 3 मंथ. जब आपको अवार्ड मिलता है उसके 3 महीने के अंदर ही आपको उसके सेट असाइड का एक एप्लीकेशन फाइल करना होता है कोर्ट में. अगर आप नहीं करते हो तो एक इफ़ यू हैव सफिशिएंट कॉज, कोर्ट जो है 30 डेज का एक्सटेंशन दे सकता है, पर ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है. ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन यू आर मेकिंग एन आर्बिट्रल अवार्ड, making an application for setting aside the arbitral award, you have to give a prior notice about the application along with the documents to the opposite party. Okay, so section 34 and chapter 7 is complete. Now we'll move to chapter 8, which is finality and enforcement of arbitral award. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये. सेक्शन 35 टॉक्स अबाउट फाइनलिटी ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड. बेसिकली जो भी आपको आर्बिट्रल अवार्ड मिलता है वो फाइनल होता है एंड इट इज़ बाइंडिंग. यू हैव टू इन्फोर्स इट. एंड जो कि इन्फोर्स बोला वो सेक्शन 36 में है, इन्फोर्समेंट. इट इज़ इन्फोर्स एज पर द प्रोविजन गिवन अंडर CPC. ठीक है, उसके थ्रू इसको इन्फोर्स किया जाता है. नाउ विल कम टू चैप्टर 9. चैप्टर 9 इज अगेन सिमिलर टू चैप्टर नंबर 7, जिसमें बहुत सारी जो सब हेडिंग्स दी गई हैं. रट डालो, रटना ही बेस्ट सोल्यूशन है क्योंकि ये चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगता है और प्रीलिम्स के लिए समझने की इतनी इस सेक्शन को ज़रूरत नहीं है. आप याद कर लो
और मार्क्स चाहिए तो याद करना पड़ेगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. ओके, तो सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट अपीलेबल ऑर्डर. तो कोर्ट में आप किस चीज़ों पे अपील करोगे? फर्स्ट पॉइंट इज रिफ्यूजिंग टू रेफर पार्टी अंडर सेक्शन 8, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट अंडर सेक्शन 9, सेटिंग असाइड और रिफ्यूजिंग टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड अंडर सेक्शन 34 जो हमने अभी पढ़ा, एक्सेप्टिंग द प्ली अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 2 and 3, ग्रांटिंग और रिफ्यूजिंग टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ अंडर सेक्शन 17. ठीक है, ये 5 पॉइंट है, ये आपको याद होने चाहिए. ऑल्सो वंस यू फाइल एन अपील यू कैन, देर इज नो प्रोविजन फॉर सेकेंड अपील इन दिस. आप सेकेंड अपील नहीं फाइल कर सकते हो, बट दिस डज नॉट टेक अवे योर राइट टू अपील इन फ्रंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, पॉइंट ये है कि आप अपील करते हो मगर आप सेकेंड अपील नहीं कर सकते हो. बट ये सेकेंड अपील नहीं करना, इट इज़ नॉट अ बार. आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो इन अपील केसेस में, आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 37 और ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 9 ऑल्सो. नाउ वी कम टू चैप्टर 10. दिस इज द लास्ट चैप्टर for our Arbitration and Conciliation Act Part 1 and also for our SEBI examination. The arbitration subject is over after this chapter. Okay, now chapter 10 talks about deposits. Okay, section 38 बोलता है डिपॉजिट के बारे में कि आर्बिट्रल अवार्ड एक डिपॉजिट फिक्स करेगा, या तो वो सप्लीमेंट्री डिपॉजिट भी हो सकता है, विच विल एक्ट एज अ कॉस्ट, जो कि कॉस्ट दिया हुआ है सेक्शन नंबर 31 क्लॉज 8 के अंदर. ओके, इट शैल बी, जो कॉस्ट या जो डिपॉजिट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है, इट हैव्स टू बी पेड बाय बोथ द पार्टीज इक्वली, या जो भी अग्रीमेंट होता है उस अकॉर्डिंगली. और अगर इफ वन ऑफ द पार्टी डज नॉट पे देन द अदर पार्टी हैज टू पे फॉर इट. इवन काउंटर क्लेम और क्लेम के लिए भी एक अलग से डिपॉजिट निकाली जाती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है. अगर जो अदर पार्टी है जो कॉस्ट नहीं पे कर रहा था, वो क्लेम और काउंटर क्लेम का भी कॉस्ट नहीं पे कर रहा है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास एक पावर होती है जिससे वो इधर सस्पेंड और दे कैन टर्मिनेट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. ठीक है, अगर जो सेकंड पार्टी है जो नहीं दे पा रही थी डिपॉजिट, जो नहीं दे रही थी डिपॉजिट, अगर वो क्लेम और काउंटर क्लेम का भी डिपॉजिट नहीं देती है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उसके पास एक पावर होती है जिससे वो या तो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर सकता है या सस्पेंड कर सकता है. ओके, अगर वो टर्मिनेट कर देता है तो जो अकाउंट होता है या जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से जो अनएक्सपेंडेड पार्ट होता है, मतलब जो खर्च नहीं किए गए थे, जो पार्ट बचता है, वो पार्टीज को वापस कर देता है. ठीक है, नाउ वी कम टू सेक्शन नंबर 40. 39 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए, वो मेंस के लिए जरूरी है, प्री के लिए इतना जरूरी नहीं है, बस आप रीड कर लेना उसको. सेक्शन 40 टॉक्स अबाउट आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ द पार्टी, विच मीन्स कि अगर कोई पार्टी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग उसकी डेथ हो जाती है तो प्रोसीडिंग टर्मिनेट नहीं होगी, उसकी जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा. एंड सेकेंडली, जो पार्टी जिसकी डेथ हुई रहती है वो जिस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है वो आर्बिट्रेटर तब भी रहेगा, उसको आप रिप्लेस नहीं करोगे. ओके, देन वी कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस विच इज सेक्शन नंबर 43, लिमिटेशन. ठीक है, इसमें बस एक पॉइंट याद रखना है कि लिमिटेशन पीरियड, जो लिमिटेशन एक्ट आर्बिट्रेशन एक्ट में लगेगा वो कब से शुरू होगा? इट शैल कमेंस ऑन डेट रिफर्ड अंडर सेक्शन 21. तो सेक्शन 21 में हमें डेट रिफर की गई है आर्बिट्रेशन एक्ट में. लिमिटेशन एक्ट के लिए जो पीरियड हमारा स्टार्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट होगा. ओके, सेक्शन 21 बोलता क्या है? क्वेश्चन 21 हमने पढ़ा था, इट टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग. और मैंने ये मार्क भी करवाया था, ये लाइन आप फिर से मार्क कर दो अगर आपने नहीं किया है. गो टू बैक टू योर बेयर आई, ओपन सेक्शन 21 एंड मार्क द लाइन arbitral proceeding in respect to a particular dispute commences on the date on which request for that dispute to be referred to the arbitration is received by the respondent. जिस दिन रिस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट मिलती है कि लेट्स गो फॉर एन आर्बिट्रेशन, उस दिन से टाइम फॉर लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो
we have completed our part 1 of Arbitration and Conciliation Act. I hope you like this series. I'll try to bring forward the important cases with respect to arbitration. I don't think वो SEBI के लिए इतना important होगा, but it will be important for DGS examination. And we are hoping that DGS examination is going to happen very soon. I don't know the date, so I cannot reveal or say anything about the date, but be prepared, start preparing for your Delhi Judiciary examination as well. Okay, so I hope you like the video, and if you do like the video, please do like the video, share it with your friend, and subscribe to the channel. Thank you so much.